ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ? बहुत बहुत सुंदर है पंजाब। आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है। ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ? बचपन से ही था, मतलब बचपन से घर वाले बोलते थे कि ये इतना नाटक करती है कि इसको कैमरे पे ही जाना चाहिए। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖੂਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਊਚ ਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, इस लाइन दे विच एंटर होने दे लिए? उन्होंने डे वन ये क्लियर किया था कि कभी ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें कॉल करके कभी काम दिलाऊंगा। तुम्हारी अपनी मेहनत होगी, तुम्हारी अपना टैलेंट होगा, उस टैलेंट पे तुम्हें काम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, पर कभी ये मत सोचना क्योंकि मेरे पापा ये हैं तो मैं कॉल कर दूंगा। अच्छा, इमोशनल ब्रेकडाउन ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ? और पंजाबी म्यूजिक का अपना एक अलग वाइब है। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲੀਵ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ? बिल्कुल। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ। लोग तो कहेंगे, पूरी जिंदगी कहेंगे। अगर आप लोग के कहने के हिसाब से जिस दिन जिंदगी जीने लग गए, उस दिन तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको जिंदगी जीना। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਖੁੱਲੀ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਆਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੂਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰੋ ਕੀ ਪਿਨਾਕੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਜੋਨਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਡਮ ਇਸ਼ਿਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ? बहुत बहुत सुंदर है पंजाब। और खाना हम सुबह से काफ़ी कुछ खा चुके हैं, तो अभी ऐसा खा पी के इतना बैठे हुए कि लग रहा है कि कितनी हम बात कर पाएंगे। आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, और बहुत जिस तरीके से, जिस प्यार से आप लोग खाना खिलाते हैं, हम इतना हमें आदत नहीं है, पर हमने आई थिंक बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर लिया है। अभी आपके ऑफिस में भी आपके फेमस छोले कुलचे जलंधर के हमने खाए हैं अभी, बढ़िया चटनी के साथ। तो बहुत सुंदर है जलंधर, और काफ़ी फ्रीक्वेंटली आती हूँ मैं, चंडीगढ़ आती हूँ, बट इस बार हमारा थोड़ा आगे तक, हमें कुछ दर्शन के लिए हमें आगे जाना था, तो जलंधर, पठानकोट, अमृतसर ये होते हुए इस बार हम निकल रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? आई थिंक प्यार बहुत ज़्यादा, पंजाब के लोगों के अंदर बहुत प्यार है, और बहुत खुले दिल से वो वेलकम करते हैं। किसी के भी घर आप जाएंगे, आपको हमेशा ऐसा बहुत अपनापन सा लगेगा। जनरली आप कभी कैसे किसी नई जगह पे जाते हैं तो आपको एक डिस्कम्फर्ट होता है,
बट पंजाब आके स्पेशली ऐसा कभी लगता नहीं है। पंजाब हमेशा बहुत अपना लगता है कि आप यहीं के हो या आप यहीं से हो, यहीं बिलोंग करते हो। तो वो कभी भी डिस्कम्फर्ट पंजाबीज जो होते हैं ना, वो कभी आपको होने नहीं देते हैं कि दे आर ऑलवेज वेरी लाइक वेलकमिंग, लाउड एंड वेरी वार्म, आई विल से। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਜਾਂ मैं इधर जाना चाहनी है? बचपन से ही था, मतलब अच्छा। बचपन से घर वाले बोलते थे कि ये इतना नाटक करती है कि इसको कैमरे पे ही जाना चाहिए। और आई थिंक दैट मैनिफेस्टेशन वर्क, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब भी मैं स्कूल में सारे जितने भी ड्रामा होते थे उसमें पार्टिसिपेट करती थी। हमेशा से वो शौक था कि अलग अलग कैरेक्टर करो, अलग अलग तरीके से आपको कभी आप लड़का भी बन सकते हो, कभी आप बूढ़ी औरत भी बन सकते हो, कभी आप अपने कैरेक्टर को भी प्ले कर सकते हो। तो आई थिंक वो जो एक फ़न था ना, बचपन से मैं बहुत एक्साइटेड होती थी उस चीज़ के लिए। और वही वजह थी कि जो मैं यहाँ तक एक्टिंग में आई। मैंने थिएटर किया दिल्ली में 3-4 साल अस्मिता थिएटर ग्रुप के साथ। और वो थिएटर की जर्नी में फिर समझ आया कि एक्टिंग इज़ नॉट फन जी। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जब आप कैमरे पे आते हैं, जब आप किरदार निभाते हैं, तो उस किरदार को आपको उतनी ही ऑनेस्टी से निभाना पड़ता है और उतनी ही सेंसिटिविटी से अगर आप कोई ऐसा टॉपिक उठा रहे हैं उसको दिखाना पड़ता है, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप उसको जस्टिस नहीं कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि फिर आपको उस लाइन में आना चाहिए। जनरली लोग उस ग्लैमर को देख के या फेम को देख के, कैमरे को देख के आ जाते हैं, बट एक्टिंग इज़ मच मोਰ देन दैਟ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਦੀ ਡਾਟਰ ਹੋ ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨੌਟੰਕੀਬਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖੂਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? नहीं, आई मीन कॉन्फिडेंस के लिए बोलते हैं, क्योंकि जब मैं थिएटर में भी थी तो कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ कि हम नुक्कड़ नाटक करने जा रहे हैं तो हमें लोगों के सामने जब परफॉर्म करना होता था या हम स्टेज पे परफॉर्म करते थे, तो कभी वो डर कभी भी नहीं आया। हमेशा से बड़ा कॉन्फिडेंस रहा। और आई थिंक वो जो, मतलब लोग कहते होंगे कि हाँ वो मेरे फैमिली से, स्पेशली मेरे फादर से वो चीज़ मिली है मुझे, कि वो ब्लड में आ जाता है आपके, और वो बिना आपके जाने आपके अंदर होता है। और जब आपको वो प्लेटफॉर्म मिलता है, तब आप जब करते हो तो आपको लगता है कि अच्छा हाँ ये मिला है हमें। तो वो एक चीज़ है। हाँ बिल्कुल, मतलब ड्रामेबाज तो पॉलिटिशियन को, अब वो तो आई थिंक ऑपोजिशन की लैंग्वेज होगी। बट ड्रामेबाज तो नहीं, बट हाँ आई थिंक पॉलिटिक्स में भी अगेन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर किसी जगह पे बैठे हैं, जैसे अगर मैं अपने फादर की बात करूं, तो वो अगर राज्यसभा में बैठे हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो हमेशा हर बार वो मुद्दे उठाएं जो जनता के हित में हों, जो जनता के लिए हों, और उस पोस्ट की वो जस्टिफिकेशन कर पाएँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो उसके लिए बहुत बेहतर तरीके से हर बार कोशिश करते हैं। हर पार्लियामेंट सेशन में वो ऐसे मुद्दे लेके आते हैं जहाँ पे पब्लिक के इंटरेस्ट की बात हो रही है, गवर्नमेंट की जो चीज़ें नहीं सही चल रही हैं उस इंटरेस्ट की बात हो रही है। और बहुत कम लोग इस वक्त, मुझे ऐसा लगता है, इंडियन पॉलिटिक्स में वो कर रहे हैं। तो आई फील वेरी प्राउड ऑफ इट, एंड आई थिंक वो ही लर्निंग है कहीं ना कहीं। मैं एक्टिंग में भी जब कोई भी सब्जेक्ट में चूज़ करती हूँ तो हमेशा जो पब्लिक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होता है वहाँ मेरा इंक्लिनेशन हमेशा ज़्यादा होता है कि ऐसा कुछ कैरेक्टर करते हैं जहाँ पे आप किसी की आवाज़ बन पाओ। क्योंकि अगर वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे और आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, वो प्लेटफॉर्म है, तो आपको वो, मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए, ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਡਿਨਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਹ, ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ मैं ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक चीज़ कॉमन होती है उन हमारे दोनों की फील्ड के डिस्कशन की, वो ये होती है कि उनका भी हमेशा से ये होता है कि आप जो भी करें बहुत ईमानदारी से करें, और कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करें, कभी किसी को नीचे
वो पुश करके और खुद को ऊपर लाने की कोशिश नहीं करें। वो एक बहुत कॉमन डिस्कशन होता है और जी। वो हर बार जब भी हम लाइफ लेसन के डिस्कशन पे बैठते तो वो हमेशा हर बार यही समझाते हैं हमें कि आप कुछ भी करिए, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, थोड़ी ज़्यादा मेहनत लग जाए, जी। लेकिन आप किसी का नुकसान पहुंचा के आगे फ़ायदा लेने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि फिर वो कर्मा जो होता है आपका, वो आपको उस चीज़ का लेसन देता है। और वो अपना एग्जाम्पल दे के ही हर बार ये बोलते हैं कि उनकी ये 30-32 साल की जर्नी रही है पॉलिटिक्स में। इसके पहले वो सोशल वर्कर थे, फिर वो आम आदमी पार्टी, अन्ना आंदोलन से जुड़े, जी। फिर आम आदमी पार्टी बनी। तो उन्होंने हमेशा से ना बहुत लोगों के लिए ही किया है और उनके अंदर कभी भी ही नेवर थॉट कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे। उनका कभी वो इंटेंशन नहीं था जब वो सोशल वर्क करते थे, इट जस्ट हैपन, उस जर्नी में हो गया। तो उनका हर बार यही कहना होता है कि जब आप किसी चीज़ को मांगते हो तो वो नहीं मिलता है, आप उसके लिए काम करो, वो अपने आप आपके रास्ते बन जाते हैं। तो एक्टिंग के लिए भी हमें वो यही समझाते हैं कि हमेशा कुछ भी मत करो कि हाँ ये मिल गया तो हम कर लेते हैं, वो मिल गया तो हम नहीं। जो भी करो ऐसा करो कि कल को जब आप बैठ के देखो उसको बड़े पर्दे पे या छोटे पर्दे पे, तो आपको ऐसा लगे कि हाँ यार, मतलब मैंने कुछ अच्छा क्वालिटी वर्क किया है, क्वांटिटी नहीं किया है। उनके उनके हिसाब से उनका ये कहना होता है कि क्वांटिटी बहुत करते हैं जी। और क्वांटिटी को कोई याद नहीं रखता। जब आप क्वालिटी वर्क करते हो तो आपकी क्वालिटी को हमेशा, आज शायद अप्रिशिएट ना हो, लेकिन आज से 10 साल बाद वो अप्रिशिएट होता है। तो उस चीज़ का बिलीफ हमेशा अपने अंदर रखना चाहिए। तो दैट इज़ जस्ट वन कॉमन थिंग। आई थिंक हमेशा हर डिस्कशन में यही होता है कि मैं कभी कभी थोड़ा इम्पेशेंट हो जाती हूँ अपनी फील्ड को लेके, तो मुझे समझाते हैं। जैसे अभी हमारी फिल्म आई, अच्छा किया उसने, पर हमें ऐसा था कि वो और अच्छा कर सकती है, क्योंकि वो मुद्दा ऐसा था, लड़की बेचने की जो प्रथा परिवार की तरफ से चली जा रही है शादी के नाम पे, सीवर क्लीनर्स की जो डेथ हो रही है, तो हमें लगा काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ पे थोड़ा डिसअपॉइंट थी। फिर उन्होंने मुझे बिठाया, समझाया कि ज़रूरी नहीं है कि आज आपने ये किया है तो आज ही ये पूरी दुनिया तक जी। पहुंच जाए, पर धीरे धीरे ये पहुंचेगी लोगों तक जहाँ तक ये पहुंचनी है। उस चीज़ के लिए इम्पेशेंट मत हो कि आपने आज ही रिलीज़ की और कल वो पूरे देश में उस चीज़ की बात हो रही हो। पर आज नहीं तो कल इस चीज़ की बात होगी। जो आप काम कर रहे हैं तो उस काम को आप करते रहो, इमीडिएट रिजल्ट के लिए मत भागो। तो आई थिंक वो एक काफ़ी अच्छी लर्निंग वो हमें देते हैं हर बार, हर कॉन्वर्सेशन में। तो या इज़ अ वेरी गुड गाइड, आई वुड से। पॉलिटिशियन के साथ साथ वो बहुत अच्छे गाइड हैं, आपको बहुत अच्छे लेसन्स दे सकते हैं लाइफ के। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਐਕਟਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਬੰਬੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਊਚ ਦੀ, ਕਿ ਯਾਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ MP ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਫਿल्म ਦੇ ਵਿੱਚ? आई थिंक लोगों को 10 साल बाद ये पारो पिनाकी की कहानी जब फिल्म आई तब पता चला कि मैं, इंडस्ट्री के लोगों को तब पता चला कि मैं किसकी बेटी हूँ। मैंने हमेशा ये कोशिश की और हालांकि मेरे पिताजी भी यही चाहते थे कि इस चीज़ को हम जितना अलग रखें, वो उनका प्रोफेशन है, वो पॉलिटिक्स में है और उन्होंने अपनी चीज़ें कमाई हैं, मुझे मेरी चीज़ें कमानी है। और हम दोनों एक अलग इंडिविजुअल्स हैं, हमारी एक अलग आइडेंटिटी है और हम दोनों अपनी अलग आइडेंटिटी के लिए, अलग आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट के लिए एक जर्नी जी रहे हैं। उसके अलावा हम ऑफ कैमरा, ऑफ पब्लिक हम फैमिली हैं। हम, वो मेरे फादर हैं, मैं उनकी डॉटर हूँ, बट वो कभी हम प्रोफेशनली उस चीज़ को कभी भी हमने ड्रैग नहीं की। ना कभी मैंने उनकी पॉलिटिक्स में जाके कुछ करने की कोशिश की और ना ही कभी उन्होंने ये बोला कि तुम एक्टिंग करना चाहती हो तो चलो मैं कॉल कर देता हूँ और तुम्हें रोल दिलवा देता हूँ। वो कभी उन्होंने डे वन ये क्लियर किया था कि कभी ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें कॉल करके कभी काम दिलाऊंगा। तुम्हारी अपनी मेहनत होगी, तुम्हारी अपना टैलेंट होगा, उस टैलेंट पे तुम्हें काम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, पर कभी ये मत सोचना क्योंकि मेरे पापा ये हैं तो मैं कॉल कर दूंगा। और वो बहुत शुरू से वो चीज़ क्लियर थी और वो आई थिंक उस माइंडसेट से मैं कभी गई भी नहीं थी बॉम्बे और मुझे चाहिए भी नहीं था कि वो मेरे लिए कॉल करके मुझे काम दिला दें। आई थिंक अगर वो होता तो मैं एज एन एक्टर जो इतने सालों में ग्रो हुई हूँ वो मैं नहीं हो पाती। अगर मुझे इतनी ईजिली चीज़ें मिल जाती तो मुझे उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती, मुझे उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती।
और आज अगर मैं ऐसे सब्जेक्ट्स कर रही हूँ जो इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट हैं, आई थिंक वो मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग, मेरी एक वो जर्नी, और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स अपने फादर को बोलना चाहूँगी कि उन्होंने कभी आके हेल्प करनी नहीं चाहिए. ही वॉज ऑलवेज द बैक सपोर्ट, बट उन्होंने कभी ऐसे फ्रंट में आके कभी ऐसी हेल्प नहीं की. तो वो उसके लिए भी उनको थैंक यू है कि उन्होंने नहीं की, क्योंकि अगर वो किया होता तो फिर आज मैं इस तरीके से इतनी समझ से आपसे बात नहीं कर पाती. वो ਅੱਛਾ, ਐਜ਼ ਅ ਐਕਟਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਕਟਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੰਬੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੀ ਹੋਊਂਗਾ ਨਾ, ਹਨਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਭਟਕ ਜਾ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਜਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ. मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग, जैसा मैंने आपको बोला, वो लाइमलाइट देख के, वो फेम ग्लैमर देख के, और आजकल तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है कि हर कोई बहुत इंक्लाइंड हो रहा है इंडस्ट्री की तरफ. बट उसकी सेंसिटिविटी, वही उसको समझने के लिए आपको बहुत अपने आप को ग्रिल करना पड़ता है, एक बहुत तरीके के पैटर्न में जीना पड़ता है लाइफ में. आप ऐसा नहीं कि अच्छा आज हम मन किया तो उठ गए और चले गए ऑडिशन देने, ऐसा नहीं होता. आपका हर एक दिन का सेम रूटीन है, और उस रूटीन के बाद आप एक दिन इरिटेट हो गए, एक दिन बहुत डिसअपॉइंट हो गए कि उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट उसका कोई सोल्यूशन नहीं है. आपको 10 साल करना है, 15 साल करना है, 20 साल करना है, शायद आपको 20 साल बाद सक्सेस मिल जाए, शायद आपको 2 साल बाद सक्सेस मिल जाए. तो उसकी कोई गारंटी, कोई टाइमलाइन है नहीं. आप कब क्लिक हो जाओगे, आप कब लोगों की नज़र में आ जाओगे, वो किसी को पता नहीं है. बट आप जो अपने एंड से एज एन एक्टर, अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आप अपने एंड से जो कर सकते हैं वो कि आप अपनी ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग रखो, आप अच्छे थिएटर के साथ कनेक्ट रहो, अच्छे प्लेस करो, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छा सिनेमा देखो, और उस चीज़ को नोट डाउन करो, अपने अपने कैमरा लेके अपने ऑडिशंस, खुद के स्क्रिप्ट बनाओ, खुद के ऑडिशन रिकॉर्ड करो, अपने आप को बार बार देखो, आप कहाँ क्या गलत कर रहे हो, क्या एक्सप्रेशन आपके कहाँ ठीक होने चाहिए. हॉलीवुड सिनेमा, बॉलीवुड सिनेमा, टॉलीवुड सिनेमा, जितने भी सिनेमाज हैं, आप हर तरीके का सिनेमा, ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा, क्योंकि जब आप देखते हो कोई चीज़ तो देख के आपको उस चीज़ को समझ आता है कि अच्छा हाँ, ये मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, या मैं भी वैसा कर सकती हूँ. तो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा यू शुड वॉच फिल्म्स एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और फिर जिस दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिले और आप बोले अरे यार ये तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी मिल सकती है अपॉर्चुनिटी. उस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको हमेशा 100% रेडी रहना है कि प्लेटफॉर्म एक ही बार मिलेगा. अगर आपने एक बार नहीं प्रूव किया और आप आउटसाइडर हो तो दूसरी बार आपको मौका मिलना बहुत मुश्किल है. तो ये एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है, जो भी नए एक्टर्स आना चाहते हैं वो अपने आप को हमेशा रेडी रखें कि कभी भी आपको कल कॉल आएगा और होगा कि आपको लीड में फिल्म मिल गई. तो उस चीज़ के लिए आई थिंक यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड. ਅੱਛਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਤਾਂ इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है बंदे का. तो वो टाइम आया है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? बिल्कुल आया है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि आप जब देखते हो लोगों को काम करते हुए तो आपको ऐसा लगता है यार मतलब मैं भी इतना तो मैं भी कर लेती हूँ, कर ही सकता है, तो मुझे क्यों वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही. बट उस क्यों के क्वेश्चन का आंसर ढूंढने अगर आप भागने लगे तो उसका कोई आंसर है नहीं. वो आपको तभी मिलना है जब आपको मिलना है, और आप अपनी मेहनत करते रहिए, आपकी डेस्टिनी आपके साथ होगी. आपकी मेहनत देख के आपकी डेस्टिनी आपके साथ आ जाएगी. तो कई बार लोग बोलते हैं कि अरे किस्मत में नहीं है तो कुछ और कर लेते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किस्मत भी आप अपने लिए बना सकते हो अगर आप मेहनत करो, तो भगवान भी वो मेहनत देख के आपको उस चीज़ का फल कभी ना कभी दे देता है. तो उस चीज़ का बिलीव आपको रखना चाहिए. बट हाँ, क्योंकि आप इंसान हैं और आपके अंदर इमोशंस हैं, आपके अंदर दिल है, तो आपको वो फीलिंग्स होंगी. आप बहुत बार टूटेंगे, आप बहुत बार रोएंगे, आप बहुत बार गिव अप करना चाहेंगे कि अब और नहीं होगा, लेकिन दैट्स व्हेन आपको अपने आप को बकल अप करना है, वापस से अगले दिन फिर फ्रेश स्टार्ट करना है, और फिर वापस से उतनी मेहनत करनी है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव लोगों के आसपास बैठना है जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको ये नहीं बोले कि अरे यार छोड़ना एक्टिंग और ये. तो मुझे ऐसा लगता है अपने सर्कल को बहुत
आपको सोच समझ के चुनना चाहिए अगर आप ऐसी किसी फील्ड में हैं जहाँ एक कोई टाइमलाइन नहीं है कि कब आपको वो सक्सेस मिल जाएगी। और वो कहीं ना कहीं मेरे लिए कई बार वो ब्रेक डाउन से बाहर निकलना थोड़ा इजी इसलिए हो जाता है बिकॉज ऑफ माय फादर, क्योंकि मैंने उनकी जर्नी देखी है। कितनी बार वो जेल गए हैं, कितनी बार उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, कितनी बार उन्होंने लोगों के लिए आंदोलन किया है और आगे आके उन्होंने लाठियाँ खाई हैं। उसके बाद भी उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया है। और 20-25 साल बाद अन्ना आंदोलन हुआ है, वो 20-25 साल की जो जर्नी है उसके बारे में आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं या बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड भी हैं उस चीज़ को जानने के लिए। आज वो संजय सिंह राज्यसभा सांसद को जानते हैं, बट संजय सिंह राज्यसभा सांसद बने कैसे, उस चीज़ की अपनी एक बहुत अलग जर्नी है। और वो जर्नी 2 डेकेड से ज़्यादा की है, और वो 2 डेकेड से ज़्यादा की जो जर्नी होती है इट्स नॉट ईजी। मुझे 10 साल हो गए इंडस्ट्री में, ऑलमोस्ट 1 डेकेड। आई नो हाउ मच इट इज़ डिफ़िकल्ट जब आप उस प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पाते हो इतनी मेहनत के बाद भी, जहां आपको ऐसा लगता है आपको पहुंचना चाहिए, फिर भी आप वो ट्राई कर रहे हो। सो आई थिंक वो एक उनकी वजह से मैं हर बार उस कॉन्फिडेंस में वापस से आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं, पापा ने अगर किया है तो आई शुड ऑल्सो नॉट। एंड आई ट्राई टू मोटिवेट फ्रेंड्स अराउंड मी। मैं उनको अपने फादर से मिलवाती हूँ कई बार जब किसी का ब्रेकअप होता है, ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि अगेन ही इज़ अ वेरी गुड गाइड, ही इज़ अ वेरी गुड काउंसलर। अच्छा। तो वो काफ़ी हेल्प कर जाता है हमें। अच्छा, ब्रेकअप वो करवा देंगे ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ गाइड कर दे। उनको वो मोटिवेट कर देते हैं। उनका सिंपल होता है कि जब तुम्हारे लिए कोई नहीं रो रहा तुम किसी के लिए मत रो। सो माय फ्रेंड्स आर लाइक, मेरे जो 2-3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैं उनको जब मिलवाती हूँ पापा से, कुछ भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम है, दे ऑलवेज ट्राई एंड कम। वो दिल्ली में नहीं रहते, तो एक मेरी फ्रेंड रांची में रहती है, एक MP में रहती है, तो कभी कुछ होता है फ़ोन पे बात कर लिया है, वापस आ गए। ही इज़ जस्ट ए वेरी पॉजिटिव आई थिंक मैन, नॉट जस्ट बिकॉज ही इज़ माई फादर आई एम सेइंग इट, बट वो सच में एक मतलब उन्होंने अपने आप को किसी अलग तरीके का ही इंसान बनाया हुआ है। और कई बार हम बड़ा इरिटेट होते हैं उनको जब कोई धोखा दे के जाता है तो, बट उनके अंदर वो कभी किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखते हैं, कभी किसी को नीचा दिखाने का भावना नहीं रखते हैं। और हम कहते हैं आपने ऐसे क्यों, कई बार हम, क्योंकि हम बच्चे हैं तो हम इरिटेट होते हैं कि उसने आपके साथ ऐसा किया, आपने उसको क्यों, मतलब आप उससे क्यों अच्छे से बात कर रहे हो। आपने बोला वो उसका पर्सनैलिटी था, वो उसका नेचर था, वो उसका बिहेवियर था, ये मैं हूँ, मैं वो नहीं बन सकता, वो मैं नहीं बन सकते, तो हम दोनों अलग अलग हैं। तो आई थिंक वो सारी जो लर्निंग होती है लाइफ की ना आपकी, वो आपको बहुत हेल्प करती है जब आपके जीवन में ऐसा कोई समय आता है जब आप टूट रहे होते हो जी, तब आप इन चीज़ों को याद करते हो और आप फिर वापस से यू स्टार्ट। तो ऑल द एक्टर्स आई वुड से जो हैं, जो आ रहे हैं, जो इंडस्ट्री में वो जर्नी जी रहे हैं, स्ट्रगल तो मैं उसको नाम इसलिए नहीं देती क्योंकि वो एक जर्नी है आपकी। स्ट्रगल तो ऐसे फिर हम जब स्कूल जाते थे, वो भी इतने साल स्कूल गए हैं, तो उसको हम स्ट्रगल नहीं बुला सकते। आपकी एक जर्नी है, उस जर्नी में आप कहाँ तक जाएंगे वो किसी को पता नहीं होता, बट आप अपने आसपास ऐसे लोगों को बिठाइए जो हमेशा आपको अच्छी चीज़ बताएं, ना कि आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएं। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्टर्स के लिए, या फिर जो राइटर्स, डायरेक्टर, जो भी इंडस्ट्री की, फिल्मी इंडस्ट्री के लिए स्पेशली मुझे ऐसा लगता है आपका सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सर्कल थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, फिर तो आप पता नहीं कौन से रास्ते zigzag में जाएंगे, उसमें से फिर वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਗਾਣੇ मैं सुनते हो अभी ਪੰਜਾਬी? गाने तो आई थिंक बहुत गाने, पंजाबी गाने मुझे ऐसा लगता है इस वक्त ग्लोबली जो चल रहे हैं। मैं अभी आई भी चंडीगढ़ इसलिए ही थी कि करण औजला का कॉन्सर्ट था 14 तारीख को, तो मैं उस कॉन्सर्ट के लिए आई थी स्पेशली, क्योंकि दिल्ली में मैं जा नहीं पाई थी, कुछ काम था, तो मैं वहाँ के कॉन्सर्ट में नहीं पहुँच पाई थी। और पंजाबी म्यूज़िक का अपना एक अलग वाइब है। और ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। बॉलीवुड मूवी इनकम्प्लीट है। और आई थिंक इस वक्त करेंटली पंजाब म्यूजिक, जो पंजाब के 4-5 आपके जो बड़े सिंगर्स हैं, एपी ढिल्लों है, दिलजीत है, करण औजला है, सतिंदर सरताज जी, एक अलग जोन के हो गए वो। लेकिन ये जो भी आपके 8-10-5 जो भी बड़े ये जो सिंगर्स हैं, उन्होंने पंजाबी म्यूज़िक को यहाँ ऐसा पहुँचा दिया है कि आई थिंक ग्लोबली, मेरे जो चाचा हैं वो US में रहते हैं,
वो दिलजीत के कॉन्सर्ट में गए थे यूएस के, जो वहाँ पे टूर हुआ था, और उनको वो इतना ही इज़ नॉट मच अवेयर अबाउट पंजाब म्यूज़िक और पंजाब म्यूज़िक के जो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में। वो मुझे कॉल करके कह रहे पागल है लोग यहाँ पे, मतलब यूएस में लोग ऐसे हो रहे हैं, इवन फॉरेनर्स जिनको नहीं समझ आ रहा है, बस वो वाइब कर रहे हैं। वो कहते पूरा हॉल भरा हुआ है, इट्स लाइक जैम पैक्ड, लोग पागल हो रहे हैं, टिकट्स नहीं मिल रही हैं। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए जो पंजाब इंडस्ट्री कर रही है, जो पंजाब म्यूज़िक कर रहा है, वो हम इंडिया को ग्लोबली जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, आई थिंक इट्स कमेंडेबल। और हम सबको उस चीज़ के लिए प्राउड फील करना चाहिए, और जितना और हो सके हमें पंजाबी म्यूज़िक को और प्रमोट करना चाहिए, पंजाबी सिनेमा को। और मैंने अभी रिसेंटली, मैंने फिल्म नहीं देखी पर मैंने ट्रेलर देखा, एक कैरी ऑन जट्टा 2 कॉमेडी आपकी फिल्म है, तो वो अभी कोई बॉलीवुड से कोई कम लेवल की नहीं बन रही है पंजाबी मूवीज़, भी बॉलीवुड के लेवल की ही बन रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसी सेम लेवल पे उस चीज़ को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जैसे पंजाबी म्यूज़िक को मिल रहा है वैसे पंजाबी सिनेमा को भी नेशनली पैन इंडिया प्रमोट करना चाहिए। पंजाब इंडस्ट्री को भी अपने आप को अभी पैन इंडिया, जैसे साउथ इंडस्ट्री पैन इंडिया आ गया है, वैसे पंजाब इंडस्ट्री भी मुझे लगता है कि उनको अपनी मूवीज़ को पैन इंडिया लाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रमोट करना चाहिए। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਮੇਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਫੜਿਆ ਪਾਰੋ ਪਿਨਾਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? नहीं, बस देखिए, मैं हमेशा हर बार ये कहती हूँ कि सिनेमा का ना हर एक कैटेगरी है। हर किसी को सीरियस फिल्म देखना पसंद नहीं है, हर किसी को कॉमेडी देखना पसंद नहीं है, हर किसी को हॉरर देखना पसंद नहीं है, हर किसी को थ्रिलर देखना पसंद नहीं है। हर एक सिनेमा की ना एक ऑडियंस है जी। जैसे मैं ऐसी ऑडियंस हूँ जहाँ पे मुझे सस्पेंस थ्रिलर कहानियाँ ज़्यादा देखना पसंद है, शायद मुझे इतना कॉमेडी देखना पसंद नहीं है। पर वहीं मेरा भाई है, उसको कॉमेडी देखना पसंद है, वहीं मेरा कोई दोस्त है, उसको हॉरर देखना पसंद है। तो हर एक कैटेगरी के लोग हैं और हर एक कैटेगरी का सिनेमा बनते रहना चाहिए। अब आपको ये लगे कि मैंने पारो पिनाकी की कहानी बनाई, एक सेंसिटिव इशू उठाया और वो चली नहीं, तो अब मैं जो मार्केट में चल रहा है वही उठा के बना देता हूँ। तो मोस्टली यही कर देना प्रोड्यूसर के, जो चल रहा है तुसी वही दे जाओ। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो कोई बहुत सेंसिबल चीज़ है। इससे तो आप भीड़ का एक हिस्सा बनते हुए चल रहे हैं और आप भीड़ का हिस्सा ही बनते रह जाएंगे, आप स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो उसके लिए आप 10 बार फेल होंगे, 15 बार फेल होंगे, पर 16वीं बार आप पास होंगे। उस प्रैक्टिस के लिए आपको हमेशा नई चीज़ों को ही ट्राई करते रहना चाहिए। नॉट दैट कि हॉरर चल रहा है तो हॉरर ही बनाते रहो, कॉमेडी चल रहा है तो कॉमेडी ही बनाते रहो। ठीक है, आप नहीं कमाओगे पैसे, आप कम बजट में फिल्म बनाओ, आप इतने में बनाओ जितने में आप इतना रिकवर कर लो, या जो भी आपके लिए पैसा लगा रहा है उतना रिकवर कर ले, उसको इतना नुकसान नहीं हो। क्योंकि अगेन आई वुड से कि ये एक बिज़नेस है, मनी ट्रांजैक्शन है इसमें, तो आप बहुत ज़्यादा अपने दिल के साथ भी नहीं चल सकते। पर आप जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप कम बजट में फिल्म बनाइए जी। आप थिएटर के एक्टर्स को मौका दीजिए, आप मत लीजिए कोई बड़े एक्टर, आप मत लीजिए कोई बड़े सेलिब्रिटी जिनको आपको करोड़ों की फीस देनी है। आप लीजिए ऐसे एक्टर जो पैशनेट हैं, जो सिनेमा करना चाहते हैं, अच्छा सिनेमा करना चाहते हैं। आप बहुत आपको ऐसे एक्टर, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने थिएटर किया हुआ है, ठीक है, पाली भूपेंद्र जी के साथ। हाँ जी, पाली। तो मुझे ऐसा लगता है पंजाब में बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, आप वहाँ के थिएटर आर्टिस्ट उठाइए, आप उनके साथ काम करिए, आप 10 लाख 15 लाख 20 लाख की पिक्चर बनाइए और उसको जहाँ तक आप प्रमोट करना चाहते हैं। ये जो एक माइंडसेट बन गया कि अरे यार 2 करोड़ से नीचे फिल्म बनाएंगे तो कौन आएगा देखने, अरे 1 करोड़ से नीचे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारी फिल्म पारो पिनाकी 15 लाख की फिल्म है। अच्छा। आप जब उसको देखेंगे सिनेमा में, आप कभी आपको देख के ये नहीं पता चलेगा कि वो 15 लाख की फिल्म है। आपको बस अपनी ईमानदारी दिखानी है हमेशा सिनेमा के लिए। आपको पैसों से सिनेमा नहीं बनता है, वो एक माइंडसेट मुझे लगता है लोगों को चेंज करना चाहिए। अच्छा, तो स्पिरिचुअल हो? स्पिरिचुअल मतलब हाँ, पूजा पाठ भगवान में मानती हूँ। स्पिरिचुअल अब उसको कहते हो तो पता नहीं, भगवान में तो बिल्कुल मानती हूँ, भगवान की एनर्जी में मानती हूँ, यूनिवर्स में मानती हूँ। आप जो करते हैं आपको उसका मुझे लगता है रिटर्न मिलता है, तो उस चीज़ में मैं काफ़ी बिलीव करती हूँ। हमारी जब फिल्म इतनी वर्क नहीं की कमर्शियली, तो लोगों ने बोला अरे इसीलिए ना ये नहीं बनाना चाहिए, वो नहीं। मैंने बोला नहीं, मैं नेक्स्ट भी ऐसा ही बनाऊँगी। मुझे नहीं चाहिए कि आप 100 करोड़ कमा के और फिर आपकी कहानी कुछ कह ही नहीं रही है।
वो कहानी मुझे कहनी ही नहीं है। सबकी अपनी एक अलग थॉट होता है, ये मेरा थॉट है, मैं किसी के थॉट को कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी के बिजनेस माइंड को कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे वो चीज़ें ही करना पसंद है जो मुझे करना पसंद है। मुझे वो चीज़ें करना पसंद नहीं है जो लोग मुझे आके बोले कि ये बना दो वो बना दो। मुझे जो सही लगेगा मैं वो बनाऊँगी, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो भी ठीक है, मैं खुश हूँ कि आप मैंने ये बनाया है। मुझे मेरा दिल खुश होना चाहिए, मुझे किसी और का दिल नहीं खुश करना है। ਸੋ तो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਲੀਵ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, बिल्कुल, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ। लोग तो कहेंगे, पूरी जिंदगी कहेंगे। अगर आप लोग के कहने के हिसाब से जिस दिन जिंदगी जीने लग गए, उस दिन तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको जिंदगी जीना। अगर आप लोगों के हिसाब से कि अच्छा ये मुझे, आप दुनिया के सबसे अच्छे, मेरे पिताजी के अंदर भी 100 कमियां निकालेंगे लोग, और निकालते भी हैं, करते भी हैं। तो अब वो उस हिसाब से सोचने लगे कि नहीं मुझे ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, तो अब मैं ऐसे जीऊँगा। ये बहुत, आपको जैसा अच्छा लग रहा है आप वैसे जिए। कमियां हर किसी के अंदर होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। आपको जब खुद लगे कि इस कमी को आपको काम करना चाहिए, या आपके अपने खास जो सर्कल है वो बोले कि यार तुझे इस चीज़ पे काम करना चाहिए, आप उस पर काम करिए। आप 100 लोगों की आवाज़ नहीं सुन सकते, आप 5 लोगों की आवाज़ सुनिए, 100 लोगों की सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर ਠੀਕ ਹੈ, आपको। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? रिग्रेट तो नहीं, आई डोंट थिंक सो। ऐसा कोई रिग्रेट है? मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ कई बार मैं अपने गुस्से की वजह से ओवर रिएक्ट कर देती हूँ चीज़ों पे, पर मैं उस चीज़ को कहीं ना कहीं अब अपने आप को थोड़ा बेटर भी कर रही हूँ उस चीज़ में, और जब भी कभी वो रियलाइज़ होता है उस चीज़ को कन्फ्रंट भी कर देती हूँ मैं कि हाँ ये चीज़ मैंने गलत की। अदरवाइज ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है बिल्कुल भी। ये भी रिग्रेट नहीं कि पारो पे ना की कहानी बनाई और वो कमर्शियली नहीं चली, उसका भी कोई रिग्रेट नहीं है। और एक्टिंग में आई, इसका भी कोई रिग्रेट नहीं है कि 10 साल दे दिए कुछ नहीं मिला, उसका भी कोई रिग्रेट नहीं है। आगे 10 साल बाद और भी कुछ नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, आपने अपनी तरफ से मेहनत की, आप वो मेहनत करते रहिए बस। आई फील ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ Thank ਮੈਡਮ, you, thank ਬਹੁਤ you. ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। Same. ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ थैंक ਮਚ। यू, सत श्री अकाल जी, थैंक यू।